राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदा नंदना जय ब्रज जनरंजन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदा नंदना जय ब्रज जनरंजन जय जमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय जय जमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा रानी जय सुदर्शन गौरनिताय पंचतत्व गौरनिताय जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 गुरुदेव 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदस्य समा अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। तो आज हम लोग भागवतम के दूसरे स्कंद अध्याय 1 शीर्षक है। हिंदी में किताब नहीं इसलिए इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में बोलो। द फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन, श्लोक क्रमांक 13। बहुत सुंदर श्लोक है। कट्वांग नाम राजर्षि, खट्वांग नाम राजर्षि ज्ञात्वा यताम ज्ञात्वा यताम यह आयुष ज्ञात्वा यताम यायुष मुहूर्तात् मुहूर्तात् श्रवण सर्वां सर्वां उत्सृज्य मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् गतवान् अभयं हरिं गतवान् अभयं हरिं खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा यताम य आयुष मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गात्वानभयं हरिं खट्वांग नाम राजर्षि ज्ञात्वा याताम यायुष मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य
गत्वा न भयं हरि। बोलिए। कट्वांगो नाम राजर्षि Word meaning, translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Khatvanga, King Khatvanga, Nama, name, Rajarsi, saintly king, Gyatva, by knowing, Yatam, duration, Iha, in this world, Ayusha, of one's life, Muhurta, within only a moment, Sarvan, everything, Usrijya, leaving aside, Gatavan, had undergone, Abhayam, fully safe, Harim, the personality of Godhead. John Lacke. Translation. The saint, you can repeat after me. The saintly King Khatvanga, repeat after me. The saintly King Khatvanga, say, the saintly King Khatvanga, after being informed that the duration of his life would be only a moment's more, at once freed himself from all material activities and took shelter of the supreme safety, the personality of Godhead. The purport is long, so don't have to repeat and hear it again. Purport. A fully responsible man should always be conscious of the prime duty of the present human form of life. The activities to meet the immediate necessities of material life are not everything. One should always be alert in his duty
for attainment of the best situation in the next life. Human life is meant for preparing ourselves for that prime duty. Maharaj Katwang is mentioned herein as a saintly king because even within the responsibility of the state management, he was not at all forgetful of the prime duty of life. Such was the case with other Rajarsis, saintly kings, like Maharaj Yudhishthir and Maharaj Parikshit. They were all exemplary personalities on account of being alert in discharging the prime duty. Maharaj Katwang was invited by the demigods in the higher planets to fight demons. And as a king, he fought the battle to the full satisfaction of the demigods. The demigods, being fully satisfied with him, wanted to give him some benediction for material enjoyment. But Maharaj Katwang, being very much alert to his prime duty, inquired from the demigods about his remaining duration of life. This means that he was not anxious to accumulate some material benediction from the demigods, as he was to prepare himself for the next life. He was informed by the demigods, however, that his life would last only a moment longer. The king at once left the heavenly kingdoms, which is always full of material enjoyment of the highest standard, and coming down to this earth, took ultimate shelter of the all-safe personality of Godhead. He was successful in his great attempt and achieved liberation. His attempt, even for a moment, by the saintly king was successful because he was always alert to his prime duty. Very nice. The king at once left the heavenly kingdom, which is always full of material enjoyment of the highest standard, and coming down to this earth, took ultimate shelter of all the safe personality of Godhead. He was successful in his great attempt and achieved liberation. This attempt, even for a moment, by the saintly king was successful because he was always alert to his prime duty. Maharaj Parikshit was thus encouraged by the great Sukadeva Goswami, even though he had only 7 days left in his life, to execute the prime duty of hearing the glories of the Lord in the form of Srimad Bhagavatam. By the will of the Lord, Maharaj Parikshit instantly met the great Sukadeva Goswami, and the great treasure of spiritual success left by him is nicely mentioned in the Srimad Bhagavatam. So by the will of the Lord, Maharaj Parikshit instantly met the great Sukadeva Goswami, and the great treasure of the spiritual success left by him is nicely mentioned in Srimad Bhagavatam. Such nice purpose. Understand Sikshashtakam, Mangalacharan. Then we'll discuss something. Om Ajnanatirmirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Uta Vadakamalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanikam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Visakanitam
नमयो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छकल्पतरु कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So this morning I like to welcome everyone for this Bhagavatam session. Thank you for coming. And today is holiday also. Today is Eid or tomorrow? Today and tomorrow. Both the days. Acha, how come? Only one day there is Eid, no? Because school holiday, I saw school is there holiday today? Huh? Band hai? 2 days holiday. Holidays today. Oh, good. Good chance to discuss more about Krishna. It's an opportunity. Oh, sorry. हिंदी में बोलेंगे ना? इंग्लिश में बोले? देखते कितना भूल गए कि याद है। हिंदी बोल लो, इंग्लिश बोल लो, हिंदी बोलो। तो बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में उनको आराम होगा, है ना? हिंदी बुझ गए तो क्वेश्चन आंसर कौन बता सकता है? कौन बता? क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर द 6 क्वेश्चन? कौन से 6 प्रश्न जिसको नैमिषारण्य के ऋषियों ने, शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछे थे? बोलिए रितेश को। अच्छा, जनता का कल्याण किसमें होगा, है ना? पीपल इन जनरल, जनता का कल्याण कैसे होगा? माने अल्टीमेट गुड क्या है लोगों का? अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड क्या है वो आप बताइए। हाँ,
ये कितना नंबर क्वेश्चन है? आपके जाने के बाद धर्म कहाँ आश्रय लेगा, ये कितना नंबर है ना? 6 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि आपके जाने के बाद कहाँ लेगा, कहाँ लेगा? आंसर बता सकते कोई? कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि विषय नष्टो कलो दिशा में सब पुराणार्को अधुनोदिता। याद है? मैंने पढ़ी श्लोक गुलो, श्लोक याद आता है ना? कृष्ण स्वधाम उपगते कृष्ण धर्म ज्ञान आदि विषय, वहाँ है ना, वहाँ होगा। कहाँ शेल्टर लेंगे? ठीक है, दूसरा माने 1 और 6 हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए। वेरी गुड। तो डिस्क्राइब द नरेट, भगवान के इनकारनेशंस के बारे में बताइए, एडवेंचर्स भगवान ने क्या क्या किया उन अवतारों में आके, है ना? तो पुरुष अवतार के बारे में जानना चाहते थे कि उनके पुरुष अवतार, है ना, 3 पुरुष अवतार कौन कौन से भगवान के बोलिए? हाँ हाँ हाँ, कौन बता सकता है पुरुष अवतार? बोलिए। हाँ, वेरी गुड, हरे कृष्ण, वेरी नाइस। ये पुरुष अवतार है ना? महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो महाविष्णु को कारणोदक्षाय विष्णु भी बोलते हैं, कारण जल में वो लेटे हुए हैं, इसीलिए। तो उनके बारे में वो जानना चाहते थे, उनकी उत्सुकता थी। चौथा, आप तो 3 बोल दिए, और कोई बता सकता है चौथा प्रश्न क्या पूछा था? हाँ बोलिए माता जी। वेरी गुड, हरे कृष्ण। देवकी एंड वसुदेव। तो व्हाई डिड लॉर्ड अपीयर इन द वूम ऑफ देवकी एंड एज सन ऑफ वसुदेव? तो ये है। कितना नंबर प्रश्न हुआ? चौथा। और 5वां? अच्छा, 1 मिनट, और कोई याद है? हम माता जी बोलिए। और थोड़ा विस्तार में बोलेंगे? हाँ, उनकी लीलाओं के बारे में बताइए। भगवान के लीलाओं के बारे में आप व्याख्या कीजिए। उनके बहुत सारे माने मल्टी इनकारनेशन, लीला अवतार में जब आते हैं भगवान तो क्या क्या करते हैं, उनके बारे में बताइए। Describe the incarnations, Purusha avatars. Here describe the leelas of. एक बच गया है, कौन बोलेगा? नहीं, रुक जाइए, एक बच गया, याद है? और एक बोलिए रितेश वो। एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स क्या है? तो ये 6 प्रश्न जो थे, इसको वो मैंने सुत गोस्वामी धीरे धीरे सब आंसर करते हैं ना। बाकी के अध्यायों में सुत गोस्वामी इन सभी प्रश्नों का उत्तर करते हैं, इन सभी प्रश्नों को बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं। अगर हम देखेंगे तो, है ना, भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में उन्होंने 6 और 7 नंबर श्लोक में पहला और दूसरा आंसर दिया था। पहला आंसर, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था? जीव का कल्याण क्या है? और दूसरा एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर। तो यहाँ पे वो क्या बोले? सवय पुंस परो धर्मो यदो भक्ति यदोक्षते अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति, यह आत्मा सुप्रसिद्धति। तो क्या होगा? जीव का कल्याण कैसे होगा? और सब
माने अल्टीमेट गुड क्या है, सबका भला कैसे होगा, और सारे वेदों का सार क्या है, सवय पुंस परो धर्मो। 1:9 और 11 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ 1 to 6, 7 में उसका आंसर किया गया कि कैसे कल्याण होगा। परो धर्मोस, द सुप्रीम ऑक्यूपेशन क्या है, बोल रहे हैं सबके लिए, फॉर द ह्यूमैनिटी इज दैट बाई विच one can attain unmotivated, uninterrupted, loving devotional service unto the Supreme Lord. अहेतु की अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अहेतु की और अप्रतिहता होना चाहिए। भक्ति हम करेंगे तो भक्ति करने का मतलब कैसा, कंडीशनली होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए भक्ति। अब कंडीशनल का मतलब क्या है, भगवान ने हमको एग्जाम में पास नहीं किया तो हम माला छोड़ देंगे। हम तो इतना भक्ति किए प्रभु जी, हमको तो फेल कर दिए भगवान, हम भक्ति नहीं करेंगे, आपकी माला ले लीजिए, पंडित जी आप अपनी माला वापस लीजिए, हम चले, पंडित जी को माला वापस दे। ऐसा नहीं हो सकता। चाहे दुख सुख समय कृत्वा लाभो लाभ जया जयो, जो भी हो, भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। मुनाफा प्रॉफिट नहीं हुआ बिजनेस में, इतना मंदिर आए, किस लिए भक्ति करेंगे। मंदिर आए, दुखी थे बहुत संसार में, बोला मंदिर जाओ शांति मिलेगा, वहां भी शांति नहीं मिल रहा है, सब लोग मेरे पीछे लगे हैं। अहेतु की अप्रतिहता होना चाहिए। भगवान की सेवा प्रेमामयी सेवा होनी चाहिए, और वो अहेतु की और अप्रतिहता, उसमें कोई हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वो सेवा हमारी आत्मा को संतुष्ट करेगा। That will completely satisfy the self. तो ऐसा करने से क्या होगा, सवे पुंसो परो धर्म यथो भक्ति अतुक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धि किए, तो कल्याण कैसे, इसीलिए कल्याण होगा। और ये एसेंस है स्क्रिप्चर का, सार यही है, भगवान की सेवा प्रेममय सेवा में करना। क्यों, और एक श्लोक को बताने के बाद बताएंगे। तो कैसे करेंगे ये कल्याण, भक्ति करके। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित ज्ञानति येषु वैराग्यम ज्ञानम चद यचद अहेतुकम। भक्ति करके होगा, ज्ञान लाभ करके नहीं होगा, योगा करके नहीं होगा, भक्ति करके होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, दुकान में सामान बेच रहे हैं, भक्ति है? भक्ति है कि नहीं है? क्योंकि हम उससे जो धन जो कुछ आएगा उसको क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं ना, इस मंदिर की सेवा में लगा रहे हैं। तो अहेतु का प्रतिहता है, हाँ है, 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी कैसे है, बोले कि है ना, अगर कोई भक्ति करे तो क्या होगा, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित, उसको तुरंत क्या आ जाएगा, ज्ञान, ज्ञाने तो ऐशु वैराग्यम, ज्ञान भी आ जाएगा और वैराग्य भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ज्ञान और वैराग्य दोनों मिल जाता है उसको, जो भक्ति करता है। उसको कोई को सेपरेटली जाके ज्ञान अर्जित नहीं करना है या वैराग्य नहीं लाना है। कोई भक्ति करेगा तो अपने आप वैराग्य आ जाता है उसको, है ना। अपने केसों से वैराग्य आ जाता है। हेयर स्टाइल हम लोग का देखिए, लोग इतना हेयर बनाते हैं ना, इतना लंबा लंबा हेयर रखते हैं, और डीपी में भी हेयर स्टाइल जो है वैसे सजा लेते हैं। हेयर स्टाइल कोई दुख नहीं है ना, स्टिल दुख है, कोई दुख नहीं है। मतलब सिंपल सा बॉडीली अटैचमेंट में, अपना बॉडी से अटैचमेंट होता है ना आदमी को, इजीली गिव अप। नॉलेज आ जाता है, तो नॉलेज मतलब आत्मा के बारे में नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। हम लोग क्या हैं,
हम लोग शरीर है, हम लोग आत्मा नहीं है ना? उज्जवल नहीं, क्या है? आत्मा है भटकती। हम लोग आत्मा है कि शरीर है? आत्मा है। गुड़िया, क्या नाम तेरा? क्या क्या नाम इसका? वैष्णवी। हम लोग आत्मा है कि शरीर है? हरि बोल। छोटे बच्चे को भी पता है, सी ऑल्सो नोज दैट कि आत्मा है। मोबाइल भले खेल लेगी मगर सब बच्चे लोग को पता है। इस कृष्ण भावना में आने के बाद सब बच्चे लोग को भी पता है कि हम लोग आत्मा है। बाहर में किसी साइंटिस्ट से पूछे, बोला आई एम बॉडी, व्हाट डू यू मीन बाय सोल, गेट आउट। यस और नो? अहेतु की अप्रतिहता करने से। तो बोला कि यहाँ पे ज्ञान का मतलब क्या? भगवान के गुण रूप लीलाओं के बारे में, उनकी मधुरता के बारे में ज्ञान। और अहेतु की मतलब, अहेतु का मतलब वो ज्ञान माने वो नॉलेज, वो पाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को माने मुक्ति नहीं चाहिए। बहुत लोगों को मुक्ति चाहिए मगर मुक्ति नहीं चाहिए हमें। क्लेश अग्नि सुबदा। भक्ति कैसा रसा, भक्ति रसा मृत्यु सिंधु में भगवान रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? क्लेश अग्नि सुबदा मोक्ष लघुदाकृत सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्ण आकर्षणी चसा। तो क्लेश अग्नि और सुबदा, क्लेश अग्नि और सुबदा है। क्लेश और सुबदा ये दोनों है। क्लेश और अग्नि और सुबदा को कैसे समझेंगे? बोला कैसे? क्लेश 5 प्रकार के क्लेश हैं। ठीक है, इस बोर्ड को मिटाइए। तो बोला कि सेल्फ रियलाइजेशन, नॉलेज आ जाता है ना, तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको। Types of places, huh? गेस वर्क हो सकता है। What are 5 types of pleasure? पहला ignorance, प्लेस है। अभी तक हम लोग कृष्ण भावना में आने के पहले हम अपने आप को शरीर समझते थे, आप तो नहीं समझते। समझते थे तो शरीर है, शरीर को सजाना, शरीर को खिलाना, शरीर को पोषण करना, सब कुछ शरीर के लिए हम कर रहे थे। सब कुछ शरीर के लिए कर रहे थे, है ना? तो आप थोड़ा माइक बॉक्स को टानिए तब तो कैसे करें। और थोड़ा लाइट ऐसे घुमाइए, हाँ ऐसे, बस बस वहीं रखिए। तो इग्नोरेंस, इसीलिए हमें पहला भगवत गीता में क्या भगवान क्या बोलते हैं? क्या हम आत्मा हैं। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगा लोगों को, तब तक भौतिक स्तर पे हम कष्ट पाते रहेंगे। तो भक्त लोग क्या कष्ट नहीं पाते? वो बीमार नहीं होते क्या? उनको जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि नहीं आता है? आता है, मगर वो लोग को पता है कि तो आते रहेगा जाते रहेगा। वो लोग इतना प्रभावित नहीं होते। दे डोंट गेट अफेक्टेड बाय दैट। यस, ठीक है, जिए हैं तो मरना है, रोग तो लगा रहेगा, बुढ़ापा आने वाला। लोगों को बुढ़ापे से इतना डर लगता है ना,
या तो बुढ़ापा नहीं दिखे, एक भी केस हमारा सादा नहीं दिखना चाहिए, वो टेंशन हो जाता है जीवन में। दूसरा क्या है, कोई गैस वर्क बोलिए। हाँ हाँ हाँ, अस्मिता। अस्मिता का मतलब क्या है? वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, हरे कृष्ण। अस्मिता का मतलब क्या है? हाँ, राग है, हरे कृष्ण, वेरी गुड। उसके बाद अस्मिता का मतलब फॉल्स ईगो। जब हम इग्नोरेंट हैं, जब हम आत्मा हैं कि शरीर यही नहीं पता, हम शरीर समझते हैं अपने आप को। ये कहाँ से बोल रहा हूँ, बोलो तुम बोला ना, अस्मिता, राग, द्वेष। हाँ, माधुर्य कादम्बिनी में से, माधुर्य कादम्बिनी, विश्वनाथ चक्र ठाकुर। तो ये फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। तो मिथ्या अहंकार, बॉडी कोई कुछ बोल देगा तुरंत उसको लग जाता है। बाहर जाएंगे, इतना डेजिग्नेशन है लोगों को, इतना ये रहता है कि अहंकार होता है, और इतना वो बॉडीली कंसेप्ट में रहते कि हम कंपनी के ये हैं या हम ऐसे हैं। बाहर में है ना, लोगों को इतना अपने इस भौतिक शरीर से इतना अहंकार है कि वो सोचते हैं हम बहुत कुछ बड़े बड़े हैं। कल महाराज जी क्लास दे रहे थे, मैं सुन भी रहा था, राधा गोविंद महाराज को बोला, गिद्ध जो होता है ना बहुत ऊंचा उड़ता है, ईगल, मगर नीचे क्या मरा हुआ उसको देखता है। नीचे मरी हुई चीजों को देख, ऊपर से जाके देख के फिर नीचे आके वो खा के जाएगा। ऊंचा, इतना ऊंचे पे पहुंच गया मगर देखता क्या नीचे क्या मरा हुआ है, उसका नीचे। तो भौतिक जगत ऐसा है, भौतिक जगत में बहुत ऊंचाई पे भले भी पहुंच जाए मगर हमारी चेतना क्या रहती है, बहुत नीचे रहती है, क्योंकि हमको ये ज्ञान ही नहीं होता कि हम आत्मा है कि शरीर है। तो ये आत्मा शरीर, ये ज्ञान पहले हो जाए तो ये अहंकार इतना नहीं सताएगा। तो अहंकार बोला, सृष्टि सबसे पहले कैसे शुरू हुई मालूम है? अहंकार से। 5 एलिमेंट्स है ना, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, तो उससे ऐसे जुड़ा हुआ है। तो अहंकार, सब अहंकार के वशीभूत हैं हम। अहंकार कहाँ निवास करता है? कौन से शरीर में? स्थूल शरीर की सूक्ष्म शरीर? सूक्ष्म शरीर में। रवि प्रभु, स्थूल शरीर किन चीजों से बना है? अर्थ, वेरी गुड, हरे कृष्ण। स्थूल सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर की बोला, बहुत है सूक्ष्म शरीर की दिए थ्योरी है। अच्छा हाँ, बोला हाँ, वेरी गुड, हरे कृष्ण। पाका चालिए नहीं, गरम লাগছে না? ঠিক আছে, আচ্ছা, ভেরি নাইস। মন বুদ্ধি অহংকার তুমি জানো, কিন্তু ভয় পাবি না। এমনি আমরা একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন করি না। মন বুদ্ধি অহংকার দিয়ে তৈরি হয়। তো অহংকার আছে না, অহংকার ফলস, অহংকার, অহংকার মিথ্যা অহংকার, very difficult to give up, most difficult thing। मिथ्या अहंकार से ऊपर उठना, ये चादर को फाड़ के बाहर निकल के आना, मत इतना मोटा चदरा होता है मिथ्या अहंकार का, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो फॉल्स ईगो, अस्मिता। 3 नंबर क्या है? हाँ, अटैचमेंट, राग। अटैचमेंट, अज्ञान, अज्ञानता, तो अटैचमेंट हो जाता है।
फॉल्स ईगो इतना, तो ये अटैचमेंट माने भौतिक चीज़ों के प्रति अटैचमेंट बढ़ जाता है हमारा, वेरी अटैच्ड टू आवर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, है ना। किसी के पास 2 घर है, एक घर किसी को दे देगा फ्री में रहने के लिए, वो बंद करके रखा है, वो साल भर से बंद रहेगा, उसमें कबूतर खाना बन गया है, चिड़िया खाना बन गया है, बिल्ली बच्चा दे रही है, सब कुछ हो रहा है, वो देगा नहीं, किसी को देगा नहीं। वो पाइप टूट गया, नल टूट गया, कुछ हो जाए, 2 घर एक दे देंगे, 2 मोबाइल एक दे देंगे, एक ले लीजिए, आपके पास एक नहीं है ले लीजिए, 4 पैंट शर्ट है एक दे देंगे, जमा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, कैसे दे देंगे, बहुत कठिन है। गेट वेरी अटैच्ड, यस और नो, सिंपल एग्जाम्पल्स में देखकर। और अटैचमेंट माने भौतिक जगत का अटैचमेंट। अभी हम जाते हैं ना शॉपिंग मॉल, डायमंड प्लाजा, कितना वैरायटी ऑफ चीज़ है, क्या खरीदे, लोग कंफ्यूज होकर वापस आ जाते हैं बिना खरीदे, क्या खरीदे, कौन सा कलर खरीदे, इतना सारा वैरायटी है, क्या चूज़ करेंगे, समझ में नहीं आता है, तो छोड़ देते, परेशान होकर वापस आ जाते। कोई बोलते भैया तुम ही ले आना, इतना सारा सामान है। उसके बाद क्या, अटैचमेंट के बाद, हाँ अटैचमेंट में आता मार्क्स, ठीक है। अटैचमेंट पूरा नहीं हुआ, नहीं मिला तो क्या होगा, क्रोध, क्रोध होगा। तो क्रोध मतलब क्या, द्वेष, द्वेष आएगा उसे, द्वेष बोलते, राग द्वेष है ना, हाँ, राग अटैचमेंट, द्वेष एंगर, द्वेष 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 मीन्स what you call गुस्सा, अटैच, एंगर और एक्टिव, देयर इज वन मोर वर्ड, अटैचमेंट इंग्लिश में आसक्ति माने डिटैचमेंट है, विरक्ति, अच्छा ओके, एंगर वी कैन नेम एंगर, ओके। 5 नंबर, तो एंगर, गुस्सा आता है जब नहीं मिलता है ना। कौन सा श्लोक है भगवत गीता में, हाँ, একটা কি শ্লোক আছে বল, ধ্যায়তো বিষয়াম পুংসা संगन्तेषु उपजायते, संजात संजायते काम, काम क्रोध विजायते, क्रोध भवति सम्मोह, स्मृति भीमसात, स्मृति भीमसात बुद्धिनाशनस्यति। तो अटैचमेंट पूरा नहीं हुआ, एंगर, कुछ मिला नहीं मिला गुस्सा आ जाने लगता, द्वेष होता है, और लोगों से भी द्वेष करते हैं हम, उसके किसी के पास कुछ अच्छा है तो उससे भी द्वेष होता है हमको, एनवी, और लगता है अरे वो इतना कर रहे हैं हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भक्ति में कोई नहीं रहता है तो वो ये ज्ञान को, इस ज्ञान से अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। जो भक्ति में वो उसको समझ में आता है इन सब चीज़ों को क्या है, क्योंकि हम सुनते रहते हैं, सुनने से हमको समझ में आता है कि नहीं, हमको ईर्ष्या हो, बाहर के लोगों को एनवी का मतलब पता नहीं, ईर्ष्या होती है, तो ईर्ष्या होती है तो डिवोटीज कैन आइडेंटिफाई कि ईर्ष्या हो रही है, अटैचमेंट हो रहा है, फॉल्स ईगो बढ़ रहा है, इग्नोरेंस बढ़ा है। हम देख सकते हैं अपनी भक्ति को अगर हम अच्छे से करेंगे तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान से समझ सकते कि ये हमारे अंदर है कि नहीं। और ये चीज से सब चीज़ें हैं। उसके बाद लास्ट में, हाँ, भय, क्या चीज़ का भय, मरने का, फियर ऑफ डेथ। मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु का भय होता है बहुत। सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, मृत्यु से। कोई मार देगा, क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, हम लोग सब डरते हैं ना मृत्यु से। तो मृत्यु से भय,
ये क्लेश अग्नि सुभदा, भक्ति करने से हम इससे ऊपर उठ सकते हैं, क्लेश अग्नि से। जब इससे ऊपर उठ जाएंगे तो क्या होगा, सुभदा हो जाएगा। सुभदा का मतलब क्या? हाँ, अच्छा माने, अब सुभदा क्या होगा? सुभदा, सुभदा का मतलब है डिवोशनल क्वालिटीज ऑफ द वैष्णव। वी डेवलप दिस डिवोशनल क्वालिटीज व्हेन वी टेक टू भक्ति। हम जब भक्ति करते हैं, देन वी ऑल दिस थिंग्स आर सबसाइडेड, देन वी ऑटोमेटिकली टेक दिस सुभदा कम्स मीन्स गुड क्वालिटीज, जैसे टॉलरेंस, जैसे, अच्छा इसको ये फूल चाहिए, माला नहीं, ये बी को हम कम्बल भी आ रहे हैं। और देखो अट्रैक्टेड बाय द टॉलरेंस, है ना, फॉरगिविंग, और शांत, तितिक्ष्व कारुणिका सुरहित सर्वदेहिनाम अजात सत्रव शांत साधव साधु भूषणम, है ना। तितिक्ष्व है, कारुणिका है, कंपैशन आ जाता है, फ्रेंडली टू ऑल बीइंग, फ्रेंडली टू ऑल बीइंग हो जाता है, फ्रेंडली टू ऑल लिविंग बीइंग, मैंने सब क्वालिटीज है। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ भक्ति। क्लेश अग्नि सुबधा, these are the good qualities. हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भक्ति enable ones to immediately acquire causeless knowledge and detachment from the world. Causeless knowledge and detachment from the world, है ना। तो क्वेश्चन 1 और 2 क्या था? अल्टीमेट गुड फॉर द ह्यूमैनिटी एंड द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर। द आंसर इज भक्ति एंड द प्रोसेस ऑफ भक्ति। तो 7 नंबर श्लोक भक्ति है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित, ज्ञान तेषु वैराग्यम ज्ञानम चेतुकम, और प्रोसेस सवय पुंस परो धर्म यथो भक्ति अधोक्षते अहेतु के प्रत्यता यह आत्मसुत सीध। ये आंसर है। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इज आंसर्ड। अब थर्ड आंसर, थर्ड क्वेश्चन क्या था? What is the ultimate good and essence of the all scripture? First and second. Third, why did Lord appear in the womb of Devaki and son of Vasudev? इसका आंसर कौन बोलेगा? हाँ, इसमें पहले फोर्थ क्वेश्चन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? फोर्थ क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द लॉर्ड एडवेंचर इन हिज वेरियस इनकारनेशन, पुरुष अवतार। क्या था, क्या क्या है? तो 1.2.30 33 में आंसर करते सुत गोस्वामी, तो पुरुष अवतार में एक्सपेंड करते भगवान कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु
और क्षीरोदक्षाय विष्णु। अब इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग डिटेल में, है ना। और क्षीरोदक्षाय विष्णु का मतलब क्या, वो क्या करते हैं, उनका क्या कार्य है? वो लेटे रहते तो असंख्य ब्रह्मांड निकलते आते खाली उनके ब्रीदिंग से, तो एक एक ब्रह्मांड बन जाता है, उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु समा जाते हैं हर एक ब्रह्मांड के अंदर, और गर्भोदक ओशन बनता है, उसमें वो लेटे रहते हैं। उससे नाभि, उनकी नाभि से कमल पुष्प, एक डंडी आता है, एक पुष्प आता है कमल का, और उस पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं। और फिर सृष्टि का रचना होती है, और रचना होती है तो प्रत्येक जीव के अंदर, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, कौन है? वेरी गुड, क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि भगवान देवकी और वसुदेव के गर्भ में क्यों आए, देवकी के गर्भ में क्यों आए, वसुदेव के पुत्र क्यों बने, है ना। क्योंकि टू रिक्लेम दोस हु आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, टू टेक देम बैक टू गॉड है, इसलिए भगवान आके लीला करते हैं। 1.2.34 में यह आंसर किया गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर मिला कि क्यों आते भगवान लीला करने के लिए, क्योंकि भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, क्योंकि बद्ध जीव, भूले जीव उनके प्रति आकृष्ट हो जाए। भगवान यशोदा मैया और नंद बाबा के आंगन में कितनी सारी लीला की, माखन चोरी करते थे, गोपियों के साथ लीला किए, गोप बालकों के साथ जाके, है ना, जमुना में नहाते थे। कितना अच्छा लगता है सुनने में, लगता है कि नहीं। भगवान गिरिराज उठाए थे। ये तो अभी बोरिंग लग रहा होगा आपको, ये कब क्लास खत्म हो, अच्छा लग रहा है, थोड़े नॉलेजेबल है, मगर मेन तो हमारी, है ना, प्रेममयी भक्ति, ये तो क्या प्रतिहत या आत्मा सुप्रसिद्ध सी होना चाहिए। तो इसमें अभी कैसा है, बोले क्या श्रीधर स्वामी विश्वनाथ चक्र ठाकुर प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान कृष्ण मुख्य रूप से क्यों अवतीर्ण होते हैं, है ना। बोले कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में है, आएगा आगे 1.8.35 में, है ना। और 10.8.49 में भी श्रील प्रभुपाद बोलते कि, है ना, अट्रैक्ट द सोल्स इन दिस वर्ल्ड बैक टू गॉड। यही कारण है भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, इसी के लिए भगवान आते हैं। तो कितना सारा आंसर हो गया, कितना सारा क्वेश्चन था, 4 आंसर हो गए भाई साहब। फर्स्ट, सेकंड, सब पुंसो परो धर्म। तीसरा, क्यों आते भगवान बैक टू गॉड ले जाने के लिए भक्तों को। चौथा, पुरुष अवतार हो गया ना, पुरुष अवतार। अब ये 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन क्या था, नरेट द ट्रांसेंडेंटल पास टाइम ऑफ द लॉर्ड इन मल्टी इनकारनेशन अवतार्स। 5वां क्वेश्चन कि भगवान के बाकी लीलाओं के बारे में आप बताइए, है ना। तो यहां पे 5वां आंसर इस अध्याय में नहीं है। You will not get the answer in this अध्याय, I think so. इसका आंसर इसमें आना चाहिए, ठीक है। रोल ऑफ द पुरुष अवतार, इनका 5वां क्वेश्चन का आंसर है तीसरा अध्याय में, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, कि भगवान क्यों आते हैं, मल्टी इनकारनेशन, वाई लॉर्ड, नरेट द ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड एज मल्टी इनकारनेशन। तो ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स है, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। 1.3.6 to 27 में आंसर आएगा इसका पूरा। 22 इनकारनेशन है, द कुमारस, बोर,
देवर्षि नारद, नर नारायण, लॉर्ड कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु महाराज, मत्स्य, कुर्म, धन्वंतरी, मोहिनी मूर्ति, नरसिंह, वामन, भृगुपति, परशुराम मतलब और पराशर, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। राम बलराम ने बलराम एंड कृष्ण ऐसे बोलते हैं बहुत, और उनके सारे एक्टिविटीज क्या क्या लीला किए वो सब है। और छठा आंसर क्या है सबको मालूम है ना। छठा क्वेश्चन क्या था, कहा रिलीजियस प्रिंसिपल वेयर इट विल टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड्स डिपार्ट, तो क्या था, श्रीमद् भागवतम। आंसर